between both these teams, but this time it seems it's going to be a cakewalk for the Bhojpuri side. And that is the need of the moment. Need a couple of more of those. The captain, Joy Sengupta, taking charge. Was in total control of the shot. The moment he saw that, he knew there was a boundary in that, taking the aerial route but safe all along the ground, finally into the fence. It's up in the air, and that's a 6. Captain leading from the front, a captain's knock. This is truly required to save the match. Leading from the front. Belting it, no need to run for that, stand and deliver. They require more of that, and importantly, he needs to stay there with Indrashish. And there's a lot of good communication happening between both the batsmen, which is very, very important to pump each other up and say, let's go for it. I've noticed that the Bhojpuri camp, moment the Bengal team hits a couple of 4s and 6s there, they become very subdued. That's the typical Indian fan. You can't rule that out. Even if you're winning, a couple of 4s from the opposition will put you down. Wow! And that's in the air, and yes! Oh God! He is gone! Certainly disappointing for the Bengal team. Look at the Bhojpuri camp. They really wanted this and they got it. The dynamics of the game are surely in the control of the Bhojpuri team. Just when Joy was getting into the groove with a 4 and a 6. But I guess this is what he had to do. Take chances. Some work, some don't. Ayaz with jersey number 786 picking up a wicket. Proving lucky because this was the wicket which they required. And they've got it at the right time. Jishu Sengupta gone for 22, 74 for 3 Bengal Tigers. Yusuf, the new man in. And that's a full toss. And deserves that. Called a no ball. The height was the question there. The umpire immediately watching that and calling it a no ball, which means an extra run also. And a free hit. Didn't take advantage of the free hit, unfortunately. 80 for 3 after 10. Just at the nick of time when things were going a little favorable in terms of Bengal Tigers. Another wide here, declared by Sadanand Vishwanath. And back in the commentary box is Ritinder. Welcome back. बहुत बहुत शुक्रिया शंकर. अच्छी गेंद और 1 रन चुराया. अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट्स और इसकी बहुत ज़रूरत है इस समय बंगाली टाइगर्स को. थोड़ा सा पिछड़ गए हैं इस समय अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं. और ये देखिए किस तरह 1 रन चुराया. अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट. बहुत इंपॉर्टेंट गेम है ये उनके लिए. शुरू में मैच जीतना बहुत ज़रूरी इस टूर्नामेंट में मोमेंटम हासिल करने के लिए. लेकिन अभी तक अगर हम बात करें एडवांटेज की तो मुझे लगता है भोजपुरी दबंग बेहतरीन खेल दिखाया है उन्होंने. 106 for no loss was the score at this stage from the Bhojpuri Dabangs. Difference of 23 runs. The CCL Superfan question is, who will win this match? Most of you will know the answer. In the meantime, take a look at the Yamaha Faciro, which has brought fashion from the catwalk to the sidewalk. Playing it on the onside. 1s and 2s will not help, but 1s and 2s also, and there's a possibility of a run out. Suicidal, harakiri, you can call it whatever you want. They want this match to end fast. इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी. दूसरा रन तो था ही नहीं. अच्छी फील्डिंग भोजपुरी दबंग के द्वारा, लेकिन
बड़ी गलती। आप वैसे ही पिछड़ रहे हैं इस मैच में और अगर ऐसी गलतियां करेंगे तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। और भोजपुरी दबंग पूरी तरह आनंद उठाती हुई, और क्यों नहीं, उनकी टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। ये देखिए, अच्छी फील्डिंग, अच्छा पिकअप और अच्छा थ्रो, वन बाउंस, अच्छी कलेक्शन। कोई मौका नहीं बल्लेबाज के लिए, आसान डिसीजन सदानंद विश्वनाथ के लिए। The Bhojpuri Dabangs once again are on a roll, picking up 2 wickets in quick succession. Indrashish gone for 25, 85 for 4 Bengal Tigers. 4 दुविधा में बंगाली टाइगर इस समय, और उठा दिया हवा में, और एक बॉल, लाला, एक आसान सा कैच छोड़ दिया है यहाँ पर। अच्छी फील्डिंग अभी तक की है भोजपुरी दबंग ने, एक रेयर लैप्स। ये महंगा साबित हो सकता है, कहना मुश्किल इस समय। Well, the Bengal Tigers dropped several catches, so 1 gift return in terms of drop catch there. Sandy would have gone by this time without troubling the scorers. The ones and twos will not help, but nevertheless, they need to fight it out. 11 overs already gone, 87 for 4, required rate 14.56, difficult. और यहाँ पे बॉलिंग में परिवर्तन, और ये देखिए बैटिंग कार्ड बंगाल टाइगर्स का अभी तक निराश करने वाला। साझेदारी ज्यादा नहीं हुई है। जॉय को अच्छा स्टार्ट मिला, 22 रन बनाए। इंद्रशीष रन आउट हो गए, बैनर्जी ने ज्यादा रन नहीं जोड़े, और सेन गुप्ता भी स्टार्ट के बाद आउट हो गए। और अब सारा दामोदर यूसुफ और सैंडी पर। अब बिग टास्क खेल दिया है मिड विकेट की दशा में, 1 ही रन मिलेगा, लेकिन ज्यादा रनों की जरूरत यहां पर। 130 रन चाहिए महज 53 बॉलों में। Not get folded up to a low score. Intentionally played, but there is cover for that. They cannot bet beyond 2 runs. So a comfortable couple. This would be good when you're chasing a total of 150 or something, but you're chasing 200 plus. खेला सीधा मिडविकेट के हाथों में। ऑपरेशन रिस्टोर 100 seeks to restore the lives of women victims of acid attacks and promote skin donation. That is what CCL is all about. Big Brother Foundation shall donate ₹1,000 per run scored. और यहाँ पे एक और विकेट का पतन। बहुत अच्छा परिवर्तन मनोज तिवारी के द्वारा, और आदित्य ओझा ने जो उनको कहा गया था वो कर दिखाया। Oja is turning out to be a good all-rounder. Showed his mettle with the bat and now with the ball. Good prospect for Bhojpuri Dabangs. Yusuf gone for 10, 90 for 5. Had to go for a big hit, but that was not the delivery which he tried. A little bit turn there for the bowler. Picking the length on the offside, trying to go for a heave on the onside. Doesn't work on numerous occasions. Had to pay the price. Going back to the pavilion. Yusuf bowled Oja 10, 90 for 5, sliding towards defeat. बहुत ही मुश्किल में यहाँ पर बंगाली टाइगर्स। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छा मिश्रण कर रहे हैं आदित्य ओझा। यहाँ पर बॉल को वेरी कर रहे हैं और मुश्किल में डाला हुआ है बंगाली टाइगर्स को। आरडी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, बिल्कुल आसान नहीं उनके लिए। एक बड़ा 15 रन से ऊपर बनाने हैं 1 ओवर में। और जी हाँ, DRS बॉलर को लग रहा है ये प्लम है। Manoj Tiwari asked a question to the bowler Aditya whether should we really take the referral. He can take it because just about 8 hours are remaining, and the bowler pretty confident. Oh no, if this wicket goes, I think it's curtains for the Bengal Tigers. The third umpire into the picture again.
अंपायर ने इसको नॉट आउट दिया, लेकिन फील्डिंग साइड को भोजपुरी दबंग को लग रहा है कि ये आउट है। नो बॉल तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले इस डिसीजन में नो बॉल देखना जरूरी, और अब देखना है कि बॉल कहां पे हिट हुआ, इन लाइन ऑफ स्टंप हिट हुआ या नहीं। अरे बहुत क्लोज लग रहा है, ऐसा लग रहा है शायद लेग स्टंप को हिट करता। बल्ला तो बिल्कुल नहीं लगा है। क्या लगता है शंकर आपको? Well, probably in the final analysis, it might have just hit the leg stump, but then, if there is any doubt, it can go in favor of the batsman. This angle will give us a better view. बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्या डिसीजन इस समय थर्ड अंपायर देते हैं यहाँ पर। बैट तो बिल्कुल नहीं लगा है, और जी हाँ, थर्ड अंपायर के साथ बिल्कुल नॉट आउट दिया गया। Yusuf, the last man gone. For 10, it's going to be Asghar, the new bowler. So now Manoj Tiwari has the options to try out his bench strength, which can prove handy in the next couple of matches. And that's the reason probably Asghar has got a chance to bowl. And if he can pick up a wicket, they'll be more closer to the victory podium. Ayaz Khan. एक ही रन मिलेगा। यहाँ पर चौके और छक्कों की जरूरत। आस्किंग रेट बहुत बढ़ चुका है, 127 रन चाहिए महज 47 बॉलों में। और ये खेमा भोजपुरी दबंग का बहुत ही खुश, और ये खेमा जो निराश। गौली टाइगर्स आज अच्छी क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेले हैं, बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत। और खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दशा में। एक ही रन मिलेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। शंकर, आपको इंटेंट दिखानी होगी, चांस लेना होगा। अगर विकेट जाता है तो जाए, कोशिश तो दिखनी चाहिए। बिल्कुल रितिंदर, but the problem is, do these two batsmen have that big shots in their kitty? That's the key. Quite content playing it all along the ground. They're not worried about the victory. So if you want to celebrate simplicity, the only way is carbon smart. बिल्कुल ठीक, सेलिब्रेट सिंप्लिसिटी। The Bhojpuri captain also will not be unhappy to concede the ones and twos. 94 for 5, 44 balls, and still the coach believes in his team. The height of positive nature. You can give the example of the Bengal coach. बड़ा शॉट खेलने की जरूरत, और एक और विकेट का पतन। सदानंद विश्वनाथ के जहन में कोई ऐसा ही बात नहीं कि ये नॉट आउट था, सीधा उंगली उठाई, प्लम। Sandy is asking for the referral, but there was no doubt in the minds of the field umpire Sadanand Vishwanath. The Bhojpuri are already celebrating, and why not? 94 for 6. ये देखिए सेलिब्रेशन सब हो रहा है सीसीएल में, और ये रेफरल नो बॉल तो बिल्कुल नहीं है। अब देखना होगा बॉल कहां पे हिट हुआ, क्या इन लाइन ऑफ स्टंप्स था या नहीं जब पैड पे हिट हुआ। पिचिंग तो बिल्कुल बीचों बीच, अरे इससे बड़ा आउट तो क्या होगा। Pitching in line, no hesitation in the mind. So I think third umpire will be with Sadanand Vishwanath, but let's wait for the decision. And the batti which you don't like will be on now, hopefully. और ये सदानंद विश्वनाथ ने दोबारा उंगली उठाई और बताया, कंफर्म किया कि आप आउट हैं। मनोज तिवारी बहुत खुश, बहुत गर्व होगा उनको अपनी टीम पर, जिस तरह की क्रिकेट वो खेले हैं। ऑलराउंड परफॉर्मेंस, एक यूनिट की तरह खेले हैं, और अगर आप इकट्ठे हैं तभी आप बड़े मैच जीत सकते हैं। और कप्तानी की बहुत तारीफ करनी होगी मनोज तिवारी की। In the previous edition, Manoj Tiwari was saying that the next year they will be strong contenders for the title. Sandy gone for 4, 94 for 6.
पूरा मजा लेते हुए भोजपुरी दबंग का खेमा, और क्यों नहीं इतनी अच्छी क्रिकेट जो खेले हैं। और ये खेला है मिड विकेट की दशा में, 4 रन मिलेंगे, एक रेयर बाउंड्री। ऐसी बहुत सी बाउंड्रीज की तलाश बंगाली टाइगर्स को। Aditya pitching that one well up to the batsman and no problems negotiating that to the boundary. Sort of a lose the sort of delivery there. A sufficient amount of width and all the time in the world to play the stroke, and played it quite handsomely in the end. यहां से मैच जीतना तो मुश्किल है, लेकिन आपको इंटेंट दिखानी होगी, कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर आप 2-4 छक्के यहां पे लगाते हैं तो कॉन्फिडेंस जो खेमे में बहुत बढ़ता है आने वाले मैचेस के लिए। बाल बचे, आसान बिल्कुल नहीं था मनोज तिवारी के लिए इसको लपकना। 100 रन के पास। Manoj Tiwari can still smile after dropping that catch because he can afford to do it. From this stage, Bengal Tigers cannot win this match, but probably they could have gone back to their hotel and partied a little earlier. That's probably delayed a bit now with the drop catch. हो ये क्या हो रहा है? अरे समझ आना मुश्किल इस समय बंगाली टाइगर्स क्या चाहते हैं, और ऐसे तो आप बिल्कुल भी लक्ष्य के पास नहीं पहुंच पाएंगे। और यहाँ पे बिल्कुल बॉल को मिस किया। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, 100 रन पूरे हो गए हैं, लेकिन बंगाल टाइगर्स के लक्ष्य से अभी बहुत दूर। 6 wicket, 100, and required rate 18.63 beyond. But probably the captain and the coach must have sent me a message. Try to play out the 20 overs. And why not? It will be batting practice for the next match. और ये फिर सीधा बॉलर के पास। ओवर की समाप्ति 14 ओवर के बाद 100 पर 6। और यहां पर पूरी तरह दबदबा भोजपुरी दबंग का। और ये देखिए किस तरह, और काफी मुश्किल में इस समय। और सीधा फिर बॉलर के पास। चौके छक्के चाहिए यहां पे, और बहुत जल्द। रन रेट 20 के ऊपर चला गया इस समय। और यहां पे रवि किशन बहुत खुश होंगे अपने टीम के प्रदर्शन से। कॉम बॉक्स में थे और बहुत हौसला अफजाई कर रहे थे। और फिर 1 रन मिलेगा, 1 रन से कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे कॉम बॉक्स में तब्दीली, और मेरे साथ आ गए हैं एवरग्रीन और रंगीन अजय मेहरा। शुक्रिया रितिंदर। जी हाँ, जैसे आपने कहा जो रिक्वायर्ड रन रेट है 20 से ऊपर, लगभग 21 आप कह सकते हैं। 20.65 तो बड़े शॉट चाहिए। पर समस्या यह है बंगाल टाइगर्स के लिए कि ज्यादा विकेट अब शेष नहीं है। विकेट मात्र 4 ही बचे हुए हैं। विवेक का भी 1 पे है, आरडी अभी 7 पे है। चिंताएं बढ़ती हुई, उठा के खेला ऑन साइड पे, खिलाड़ी डी में तैनात, दबदबा बना के रखा है आज भोजपुरी दबंग्स ने। ये सुपर फैन क्वेश्चन है, और जल्द से जल्द आप जवाब दीजिए। और 1 लाख रुपए की जो राशि है आपके नाम हो सकती है। आप कॉल करिए 5333 599 पे। यहाँ पे सराहना करनी होगी जिस तरह की क्रिकेट खेले हैं भोजपुरी दबंग। कमाल किया उन्होंने बैटिंग में, और बॉलिंग में जिस तरह लक्ष्य को डिफेंड किया है, सराहनीय। बॉलिंग चेंजेस बहुत बढ़िया किए हैं मनोज तिवारी ने। थोड़ा सा छोटा गेंद खेल दिया है कवर की दिशा में, 1 ही रन मिलेगा। कोशिश यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। शायद लगता है बंगाली टाइगर्स सोच रहे हैं कि मैच उनकी गिरफ्त से चला गया। और ये कमाल का दृश्य। बिल्कुल, और यामा फेसिनो, इट्स अ फैशन मूवमेंट फॉर बोथ द मेन एंड द वुमेन दैट विल नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल, एंड दिस इज द काइंड ऑफ मशीन यू वांट टू हैव। क्या बढ़िया मशीन है, जबरदस्त मशीन है, आपके आप दिल को छू लेती है। अगर ये यामा आपके दिल को छू रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके दिल को छूना अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है अजय जी। और ये देखिए
भोजपुरी दबंग का खेमा बहुत ही खुश, थोड़े निराश नजर आ रहे हैं शायद। और यहाँ पे ओवर की समाप्ति 105 पे 6। तो यहां से अब 5 ओवर शेष है, 105 पे 6। बंगाल टाइगर्स मुश्किलें बढ़ती हुई उनके लिए। रन रेट अगर आप देखें वर्तमान 7 का, पर रिक्वायर्ड रेट लगातार चढ़ता हुआ, और यहां पे एक और विकेट। ओझा ने विकेट ले ली है, लाइन मिस कर गए, गलत लाइन में खेलने का प्रयास किया और 7वें विकेट का पतन होता हुआ। मनोज तिवारी झूमते हुए, और क्या स्टाइल से झूम रहे हैं। बतौर कप्तान आज बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और वही झूम रहा है भोजपुरी दबंग सा खेमा। झूम ले भैया, झूम ले, बहुत बढ़िया नजारा। शोएब अख्तर को हमने ऐसे झूमते देखा है जब वो विकेट निकालते थे, और वैसा ही करते हुए मनोज तिवारी। और भोजपुरी दबंग का खेमा खुशी और अल्लाह से भरा हुआ। और ये देखिए किस तरह पूरी तरह बॉल की लाइन को मिस कर गए और डंडे में जा टकराया बॉल। और ये नजारा अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है, कितनी कमिटमेंट दिखाई है मनोज तिवारी ने, सराहनीय। विवेक आउट हुए 3 रन बना के 105 में 7। तो ओझा को विकेट मिलती हुई बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 सफलताएं ले चुके हैं और मात्र 8 ही रन खर्चे उन्होंने। बेहतरीन कार्य किया और पूरी टीम अब ऐसा लग रहा है वो ऊर्जा नजर आ रही है, जोश नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जितेंद्र ये है कि जो जीत है वो बहुत करीब नजर आ रही है उनको, खाली 3 विकेट दूर। एक बड़ी जीत होगी ये, उठा दिया है। और यहां पे एक फील्डिंग लैप्स, एक रेयर फील्डिंग लैप्स भोजपुरी दबंग के द्वारा। ज्यादा महंगा तो नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि पूरी तरह दबदबा बनाया हुआ इस मैच में भोजपुरी दबंग ने। जी हाँ, थोड़ी सी गलती करी और उससे शायद कप्तान भी खुश नहीं थे। गेंद स्पिन हुई अगर आप देखें तो यह आसान नहीं रहता कभी फील्डर के लिए। और मनोज तिवारी कप्तान, उनकी प्रतिक्रिया थोड़े से नाराज, पर जानते हैं अभी भी रनों का बहुत क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है उनके लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 109 पे। मैंटी यानी ये स्ट्रोक खेला था। सैंडी और मैंटी रविंदर के दोनों फेवरेट प्लेयर। और भारी किनारा बल्ले का 4 रन मिलेंगे, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं। ऐसे चौके छक्के बहुत से चाहिए थे इस इनिंग में बंगाली टाइगर्स को। शायद देर हो चुकी है, लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो यहां पे जितने रन बनाएंगे अगले मैच में उतना ही मनोबल बढ़ेगा। और ये देखिए अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की दशा में, लेकिन भारी किनारा लगा और 4 रन मिले। जी हाँ, बिल्कुल। और शायद गेंदबाज को ऐसा लगा ओझा को कि एक मौका था कैच पकड़ने का और थोड़ा लेट रिएक्ट किया स्लिप में। और मैंटी 3 गेंदों का सामना किया 8 में पहुंचते हुए। रन आने जरूरी हैं, किसी भी तरह आए। पर ओझा अगर आप देखें जिस लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं रिकी, वो लाइन आसान नहीं है। ऑस्ट्रम के बाहर और कई गेंदें, क्योंकि इस विकेट में इस सतह में थोड़ी घास है, थोड़ी गेंद सीधी रहती हुई, ग्रिप नहीं कर रही ज्यादा। खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 ही रन मिलेगा। अजय, आपने बहुत अच्छी बात कही, अच्छा प्लेयर वो होता है जो विकेट को अच्छा रीड करता है। और यहां पे ओवर की समाप्ति 114 पर 7।
अगर दोनों रेखाओं की आप बात करें, जो अब लाल रेखा है वो बंगाल टाइगर्स की और अब नीचे डिप करती हुई जो अंतर है दोनों रेखाओं के बीच में वो आपको नजर आ रहा है और ये दर्शाता है भोजपुरी दबंग्स की टीम अभी कितनी बेहतर स्थिति में है। पूरा दबदबा बना के रखा है, पकड़ बना के रखी है। वाइड का इशारा इस बार थोड़ी सी दिशा से भटकते हुए